नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। भारतीय वन्यजीव संस्थान जो वन्यजीवों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर पूरे भारत में अनुसंधान करता है, उनके संरक्षण और प्रबंधन के लिए कार्य करता है। हम मौजूद हैं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में, जहां पर भारतीय संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस सम्मेलन में। प्रकृति की गोद में पलने वाले वन्यजीव न केवल पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ होते हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक और जैविक धरोहर का भी अभिन्न हिस्सा हैं। इन्हीं मूल्यों को सहेजने के उद्देश्य से भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर से जुटे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और पर्यावरणविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। इस अवसर पर वन्यजीव संस्थान देहरादून के निदेशक वीरेंद्र तिवारी द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वन्यजीव संस्थान देहरादून के निदेशक वीरेंद्र तिवारी, डीजी फॉरेस्ट सुशील कुमार अवस्थी, कार्यक्रम के आयोजन सचिव डॉक्टर बिलाल हबीब और डीन डॉक्टर रुचि बडोला कार्यक्रम में गणमान्य अतिथियों के रूप में मौजूद रहे। सम्मेलन में वाइल्ड लाइफ संरक्षण को लेकर देश भर से आए वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। भारतीय संरक्षण सम्मेलन में प्राकृतिक आवासों की रक्षा, दुर्लभ प्रजातियों के पुनर्वास, मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम तथा जैव विविधता के संरक्षण में स्थानीय लोगों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। डीजी फॉरेस्ट सुशील कुमार अवस्थी ने इस अवसर पर अपना संबोधन प्रस्तुत करते हुए वन्यजीव संरक्षण की दिशा में चल रहे प्रयासों के बारे में बताया। Today's occasion is also no less significant. Our Honorable Minister is with us, and he always been backing and supporting us in such endeavors. He always backs us when there is anything which we want to do, which is research oriented, which is evidence based. He always likes that idea and supports us. So with his blessings, we have constantly been engaging in such endeavors. If you look at like last 10 days, what we have done, we have been engaging in various such endeavors. But today is the turn of wildlife. So in this historic context of ICON, when it was born, it was envisioned as a space where scientists, forest officers, students, NGOs, the community leaders, they can come together and shape India's conservation future. This edition is supported by Ministry also, and it also brings together the similar stakeholders as it has been envisioned. We all know that India is a country where conservation is very, very deep rooted. We have sacred groves, we have communities who have given their lives for the sake of nature, for the sake of trees, for the sake of environment. And India has always revered nature as a very, very precious resource which is not to be exploited, but it is a force which is to be worshipped and protected. India today is leader in biodiversity conservation and wildlife conservation, if I can say that with a lot of confidence. Our conservation journey is not limited to the boundaries of our country. It has gone beyond. We have also been pioneers in bringing back cheetah. We have reintroduced cheetah successfully, where all other countries were creating doubts, but we could do that successfully. We hosted the G20 Environment and Climate Sustainability Working Group, and we also contributed very significantly at COP28. This is what India's demonstration that ecological responsibility can also go hand in hand with economic progress. Let ICON be more than a conference. Let it be a movement of minds and hearts, a launchpad for new partnership
and where the wisdom of our elders meets the vision of our youth. कार्यक्रम में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री ने MME रिपोर्ट का विमोचन भी किया। हर्बेरियम गैलरी का मुख्य अतिथि द्वारा निरीक्षण तथा उद्घाटन किया गया। सम्मेलन में प्रतिभाग करने आए स्टूडेंट को बढ़ावा देने के लिए 8 चयनित छात्रों को अध्ययन में उपयोग में आने वाले उपकरणों के लिए 25,000 रुपए की राशि का चेक केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वन मंत्री ने कहा कि प्रकृति संरक्षण का दायित्व सरकार के साथ समाज का भी है। अवनत वनों को बेहतर करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। लाभ है कि हम दुनिया के वो 97 कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, एशिया कंट्रीज है, जहाँ पर ये बिग कैट्स पाए जाते हैं, एक बड़े तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए हम इस कोलिशन के माध्यम से बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेके हम काम कर रहे हैं, घड़ियाल को लेके हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक और जो स्पीशीज है स्लॉथ बियर, मैंने देखा है, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर अपने प्रेजेंटेशन दिए हैं और ये एक ऐसी चुनौती है स्लॉथ बियर की जिसको बचाना बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट ये कंजर्वेशन का एक बड़ा प्रोग्राम है जिसको करने के लिए हम लोग काफी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, लोकल जो लोग हैं उनकी थोड़ी जागरूकता का उपयोग हो, उसको थोड़ा लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग का हो, ट्रेनिंग का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, लेकिन फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट हमारा एक बड़ा चुनौती वाला कार्य है। और इसलिए जो इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस आपकी 2 दिन होगी, निश्चित रूप से आपके जो पेपर्स आएंगे हम मंत्रालय के स्तर पर भी उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन हम सब यहाँ बैठे हुए जो कंजर्वेशन के प्रोग्राम में आए हैं, हमको वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान 2047 के विकसित भारत में कैसा होगा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश ने जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के जो अपने डेटा पूरे दुनिया के सामने रखे हैं, जब शर्म एल शेख में कॉप हुई थी तो हमारे जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन के जो हमने डेटा रखे हैं उसने इस बात को बताया है कि भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी के साथ अपने ग्रीन हाउस गैस में जो टारगेट है इंडिसीज के, उसको समय से 9 साल पहले पूरा किया है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के जो 2 बड़े आह्वान हैं, एक है मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल, हमने उसकी भी हैकाथॉन कराई है। जैसे आपको प्राइज मिले हैं, पिछले 1 साल लगातार मैं देश भर के IITs, IIM और बड़े साइंस कॉलेज में गया, तो उसमें हमने उनको कहा कि आप अपने आइडिया 7 चीजों में दीजिए: सेव वाटर, सेव फूड, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक और हेल्दी लाइफस्टाइल। ये 7 ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारे नौजवान टेक्नोलॉजी को लेकर के, एनवायरमेंट सेविंग को लेकर के काम कर सकता है। और मुझे अच्छा लगा कि इसमें भी काफी सारे पार्टिसिपेंट ने भाग लिया, और इसलिए मिशन लाइफ के साथ जो दूसरा प्रधानमंत्री जी ने एक और बड़ा प्रोग्राम दिया है वो है एक पेड़ मां के नाम। और लोगों में कितनी बड़ी भावना है कि पिछले साल 5 जून को जब प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान दिया था, तो बिना कैंपा का थोड़ा खर्च हुआ होगा, बाकी बिना किसी सरकारी फंडिंग के जो ऐप हमने बनाया उस पे 140 करोड़
पेड़ लगाने का डाटा अवेलेबल हुआ जो लोगों की प्रकृति के प्रति लगाव को दर्शाता है। इस अवसर पर आयोजन सचिव डॉक्टर बिलाल हबीब और डीन डॉक्टर रुचि बडोला ने वन्यजीव संरक्षण में संस्थान की भूमिका को विस्तार से साझा किया। ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ये इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है। ये उसका दूसरा एडिशन है। पहला एडिशन 2 साल पहले 2023 में मैसूर में हुआ था और ये दूसरा एडिशन है। पहला एडिशन ऑनरेबल पीएम ने रिलीज़ किया था 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के टाइम में। जो मेन मुद्दा है इस कॉन्फ्रेंस का वो ये है कि ये जितने भी लोग कंजर्वेशन में काम करते हैं, चाहे वो मैनेजर्स है, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स है, चाहे वो प्रैक्टिशनर्स है, चाहे वो साइंटिस्ट्स हैं, जो सब लोग हैं वो एक जगह पे आके विचारों को डिस्कस कर लेते हैं और ये देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है और आगे जाके क्या करना है। ये जो इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं, ये दूसरी ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो ऑर्गेनाइज़ करी जा रही है और 2 साल पहले मैसूरू में हमारी पहली कॉन्फ्रेंस जो थी वो ऑर्गेनाइज़ करी गई। इसके पीछे जो है एक बहुत ही दूरदर्शिता और एक सोच है कि जो जैव विविधता संरक्षण है वो किसी एक स्टेक होल्डर ग्रुप के द्वारा संभव नहीं है, चाहे वो कंजर्वेशनिस्ट हो, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हो। ये तो एक सामाजिक इशू है, ये तो एक पूरे देश के लिए और पूरी मानवता के लिए एक इशू है। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो अपनी अपनी बात कह सकें एक मंच पे। उसके अलावा डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं उनसे उनके जो बैरियर्स हैं वो तोड़ के हम लोग साथ आ सकें और इस तरह के सल्यूशंस निकाल सकें साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा, पॉलिसी के द्वारा, जो कि अक्रॉस द सेक्टर्स हों। वाइल्ड लाइफ एसओएस के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। आइए यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ बहुत सालों से कोलैबोरेटेड है और हमारा गर्व है ऐसे आइकॉन जैसे वर्कशॉप में हमको एक मौका मिला। हम इसका एक कोलैबोरेट पार्टनर भी है और ये आप जो देख रहे हैं, हम 1995 ऑनवर्ड्स वाइल्ड लाइफ एसओएस वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वेलफेयर में काम करना शुरू किया है। आज हमारे पास 14 स्टेट में हमारा रेस्क्यू सेंटर्स है विभिन्न एनिमलों के लिए, भालुओं के लिए, हाथियों के लिए, लेपर्ड, टाइगर, सांपों के लिए, बंदरों के लिए और अनेक चिड़ियाओं के लिए। ऐसे हम उसके अलावा हम अलग कम्युनिटी के साथ भी काम करता है। सपेरा कम्युनिटी, कलंदर कम्युनिटी, उनका पुनर्वासन भी करता है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ये दुनिया की 7 कैट स्पीशीज़ जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता और अमेरिकाज का जगुआर और पूमा, ये 7 कैट स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। और हमारे जो रेंज कंट्रीज़ है, लगभग 95 रेंज कंट्रीज़ है दुनिया से। तो IBCA ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एज ए अलायंस, जो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये 7 कैट, जैसे आपको पता है कि दे आर ऑल एपेक्स प्रेडेटर्स, तो ये 7 कैट के कंजर्वेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट मिटिगेशन और बेसिकली जो ह्यूमन काइंड का वेलफेयर है उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेगी। ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से हम लोग इस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए हैं। इधर पे हमारा एक स्टॉल है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया डिफरेंट तरीके का स्पीसीज़ में अलग अलग लैंडस्केप में काम कर रहे हैं। जहाँ पे देयर इज़ ए नीड, कंजर्वेशन के नीड जहाँ पे ज़्यादा है, उस स्पीसीज़ में WTI फोकस करते हैं। WTI शेरगांव में, अरुणाचल प्रदेश में कैट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके अलावा WTI हाथी में बहुत ज़्यादा काम किया है। वाइल्ड एलिफेंट कॉरिडोर्स में ऑल ओवर इंडिया में 101 एलिफेंट कॉरिडोर WTI ने आइडेंटिफाई किया था। इसके अलावा 46 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में स्पीसीज और हैबिटेट में। ये कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य यहाँ पे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स कंट्री के अलग अलग प्रदेश से आए हुए हैं, टोटल 30 अलग अलग प्रांत से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और 4 फॉरेन पार्टिसिपेंट भी आए हुए हैं। तो
आप जैसे जानते हो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, तो उनके साथ ही एक इंटरेक्ट करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिलेगी। यहाँ पर टोटल 200 टॉक्स हो रहे हैं, तो हम उनके बारे में प्रेजेंटेशंस और पोस्टर्स होंगे जिससे बाकी स्टेक होल्डर्स और साइंटिस्ट उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके साथ बातचीत करने की और इंटरेक्ट करने की। यहाँ 600 रिसर्चर्स काम करते हैं और हमारे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट छोड़ के बाकी जगह पे जो इतने सारे रिसर्चर काम करते हैं उनको एक मौका दिया जाता है यहाँ आके अपना काम को प्रेजेंट करें। तो एक मेन फोकस है कंजर्वेशन कांग्रेस का, साइंस बेस्ड जो काम रिसर्च हो रहा है उसको कैसे हम फील्ड तक ले जा सकते हैं, और ये कॉन्फ्रेंस उसी के फोकस में किया जाता है। ये यहाँ देहरादून में आइकॉन 2025 की शुरुआत हुई है और इसकी खासियत ये है कि ये हर 2 साल में ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और इसमें जो भी भारत और भारत के बाहर के जितने भी रिसर्चर हैं या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के एरिया में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपने रिसर्च को प्रेजेंट कर सकते हैं। खासकर ये स्टूडेंट्स के लिए और रिसर्चर्स के लिए बहुत बड़ी सुविधा है जिसमें वो अपने रिसर्च को की फाइंडिंग दिखा सकते हैं और उन्हें सपोर्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 75 स्टूडेंट्स को ट्रैवल ग्रांट बर्सरी दी है और करीब 15,000 रुपये तक उनको ट्रैवल के लिए ग्रांट दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो और कॉन्फ्रेंसेस में नहीं होता है वो हम 8 स्टूडेंट्स को इक्विपमेंट ग्रांट भी दे रहे हैं। तो जो वो अपने रिसर्च प्रपोजल सबमिट करते हैं कि उनके क्या आइडियाज़ हैं और ये इक्विपमेंट की उनको उस रिसर्च के लिए कैसे ज़रूरत है। और ये भारत सरकार की जो का उद्देश्य है कि जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है उसे बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, उस दिशा में कार्य कर रहा है। इसके अलावा पिछले साल हम लोगों ने इंडियन जर्नल ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंस भी शुरू किया है जो भारत का पहला जर्नल है जो वाइल्ड लाइफ साइंस पे पब्लिश करता है। यह सम्मेलन केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की रणनीतियों का आधार भी बनेगा। एक ऐसा संकल्प जिसमें हम और प्रकृति साथ साथ आगे बढ़ें। तो दर्शकों, ये था भारतीय संरक्षण सम्मेलन जहां शोध, सहयोग और संरक्षण की आवाज एक साथ गूंज रही है। हम आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको वन्य जीवों से जुड़े अहम जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसी के साथ दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपसे लेती है विदा। नमस्कार।